abdicate its international obligations on the pretext of domestic legislation and judicial verdict. Its plans to annex IIOJK are bound to fail. The judicial endorsement of India's unilateral and illegal action of 5th August 2019 is a travesty of justice based on distorted historical and legal arguments. The Indian Supreme Court's verdict fails to recognize the internationally recognized disputed nature of Jammu and Kashmir dispute. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people who have already rejected India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. Restoration of statehood, conduct of state assembly elections, or similar steps cannot serve as a substitute to the grant of right to self-determination of the Kashmiri people. The judgment cannot distract the international community's attention from the gross and systematic human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumaira Khan from Summer Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically, we are very active. मगर मुख्तसर अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहेंगे इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? Kinetic, strategic, whatever, क्या इसका possibility? जी, अपना we will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development, which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the UN Security, United Nations Secretary General, OIC Secretary General,
European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of, we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. कश्मीर का इशू जो ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में है, पाकिस्तान के पास और फोरम क्या बचता है कि पाकिस्तान अपना केस इस लेवल पे और उनकी लेके जा सकता है? उसमें एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इश्यूज ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा, और डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय इंडिया फॉर द लास्ट सेवरल डेकेड्स to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict, and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiri into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between this development to his bid for Africa? एक तो प्राचा साहब, जिस तरह मैंने मेंशन किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी, कि अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया की जो सुपीरियर जुडिशरी है, दैट हैज बिकम ए प्लाइंट जुडिशरी. प्लाइंट इन द सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट दिया था, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट भी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो दैट वाज इन वायलेशन ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. Similarly, ये जो सा verdict आया है, this is again as mentioned in my statement, ये भी it is the verdict of a pliant judiciary. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. और उसकी वजह से आपने दूसरा जो बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्वीट के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये के जी इट इज सॉलिडिफाई द यूनिटी ऑफ, तो उसमें तो आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद भी इस किस्म की बात की गई, लेकिन वो आज तक उसको बात को भी तकरीबन 4 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई भी ना ही रूल ऑफ लॉ है, ना ही वहाँ पर शख्सी आज़ादी है, और वहाँ पर जिस किस्म की जो वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की गई हैं, उसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है. आपको याद होगा कि 2018 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की जो कमिश्नर ने उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे एक डिमांड की थी कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी should be established to determine the human rights violations
which are taking place in the Indian occupied Kashmir. लेकिन unfortunately बदकिस्मती से वो जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की वो जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ. इसी तरीके से OIC का एक ऑब्जर्वर मिशन है जो कि वो जाना चाह रहा था मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उसकी भी बारहा रिक्वेस्ट के बावजूद कोई भी उनकी हिंदुस्तान की तरफ से, ऑब्वियसली ये अगर मैं तो उनकी बात पे तब यकीन करता अगर वो वहाँ पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आने की इजाज़त देते, इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में आने की इजाज़त होती, तो उसके बाद फिर देखा जाता कि वहाँ पर किस किस्म की यूनिटी है. हमारी अपनी परसेप्शन के मुताबिक और तमाम कश्मीरियों के मुताबिक उन्होंने तो वो ना सिर्फ पिछले एक्शन को उन्होंने रिजेक्ट किया बल्कि उन्होंने जो डिसीजन है उसको भी उन्होंने अपना सारा यूनिवर्सली उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया है. You said it has no legal status about this verdict, but again, the Supreme Court verdict itself speaks something very special. On international level, how would you, Pakistan, present this case for Kashmiris? Also, tell what would be the role of International Court of Justice? देखिए जी, बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो ये ही बात जो इंडिया के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी के बारे में यही कह रहे हैं. और वो उनके मुताबिक देयर इज ए कंट्रडिक्शन व्हिच इज कमिंग आउट वेरी वेरी क्लियरली इन द करंट डिसीजन ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. In 1973 के अंदर वो केशवंत भारती केस के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि उनको जो पार्लियामेंट को कश्मीर से रिलेटेड उसके पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को वो उसको अमेंड करने का. तो अगर वो वाला जो सा डिसीजन उसको एक्सेप्ट किया गया था तो यहाँ पे उसको कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं. तो मेरा कहने का मकसद है कि कंट्रडिक्शन तो बेशुमार है और यही बात जो सी है इंडियन लीगल एक्सपर्ट्स भी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं. ये बताइए कि पहले ये फैसला हुआ और इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आप फोर्स क्या करते हैं कि जो पीस है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये मेंटेन रह सकेगा? हमने देखा कि कुछ अर्सा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़ा अमन रहा, कश्मीर के अंदर भी कोई इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं रही कश्मीर जो वायलेंस की. तो आप समझते हैं कि ये पीस रहेगा आपकी एज ए डिप्लोमेट आपकी ऑब्जर्वेशन? जी, हमारी तो कोशिश होगी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पीस पिछले कोई 2-3 साल से वो अपना एक पीसफुल सिचुएशन है वो कंटिन्यू करें. मिनिस्टर साहब, अलानुर वजीर टीवी चैनल से, आपने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात की तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का कोई खास वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतालबा क्या है और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन से मुतालबा यही है कि वो इंडिया को मजबूर करे कि वो अपनी जो करारदादे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए वहाँ पे हिंदुस्तान की. दूसरा, आपने कहा कि उनकी तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, तो मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि सिर्फ अभी चंद बरस पहले ही यूनाइटेड नेशंस के ही कमिश्नर ने, ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर ने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेंट टू मकबूजा कश्मीर to investigate the massive violations of human rights which are taking place in Indian occupied Kashmir. मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 साल पहले जब आर्टिकल 370 की मनसूखी का फैसला किया गया था, तब भी हमने देखा कि मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मकबूजा जम्मू कश्मीर को तब्दील कर दिया था. और अब भी हमने देखा कि 2 रोज कबल कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सेक्शन 140 का नफाज किया गया. इस हवाले से सर आपका मौक़िफ़ क्या है और जो कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ जारी है उस हवाले से पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए आगे मज़ीद क्या इक़दाम करने का इरादा है?
जी, हमारी तो ऑब्वियसली जिस किस्म की वहाँ पर जुल्म और बरियत की जो एक नई दास्तान मुरतब की गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, न सिर्फ पिछले 4 साल से जिस अरसे में तब से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है वहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1947 से जिस चक्की में पिस रहे हैं कश्मीरी, तो उसका कोई मदावा होना चाहिए, और उसके मदावे की सिर्फ एक ही सूरत है कि यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर एक ऑब्जर्वर ग्रुप भेजे, और वहाँ पर जिस तरीके से उनकी ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर ने अपना एक 2018 में कहा था कि मुतालबा किया था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी को भेजा, वहाँ पर फॉर्म किया जाए टू इन्वेस्टिगेट द सेम थिंग। तो उसके लिए हमारी जो सी कोशिश होगी कि इस किस्म का जो एक दोबारा एक स्टेप, जो एक नया एक इनिशिएटिव ले यूनाइटेड नेशंस इस बारे में। Thank you, Foreign Minister. You spoke detail about it and some of the questions. My question is, after this particular verdict of the Indian Supreme Court, the Indian political and military leaders got more power and strength now. So there will be more provocative statements against Pakistan. And India is also approaching general elections next year. So how to counter this Indian propaganda provocative statements? Are you going to take any special diplomatic initiative so that the world may not accept their false narrative and story against Pakistan? And on record, Indian Defense Minister just a couple of weeks back publicly said we will snatch it from Pakistan. So situation has aggravated. What is your diplomatic strategy to push back India from making aggressive postures, provocative statements, and hard position against Pakistan and Jammu and Kashmir? Thank you. तीन हैदर साहब, जो कोई किसी भी नैरेटिव के पीछे जो एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब एक मुल्क अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाए तो उसके बाद चाहे आप किसी किस्म का भी नैरेटिव सामने लेके आए, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। अब आप पिछले चंद बरसों से, चंद महीनों से, चंद सालों से जो आप देख रहे हैं कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़रों में बहुत हद तक गिर चुकी है, और उसकी एक गिरने की वजह एक जो उन्होंने एक दहशतगर्दी का और असैसिनेशन का जो जाल वो बुना था मुख्तलिफ ममालिक में, और जिसके सिलसिले में ना सिर्फ अमेरिका ने, कनाडा ने, बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, और उनके जो रेलेवेंट जो उनके जो ऑफिशियल्स थे जो कि इन्वॉल्व थे हिंदुस्तान की हुकूमत के, तो उनको भी उन्होंने इंडाइट किया है। तो उससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत हद तक मुतासर हुई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी किस्म का भी जो नैरेटिव आएगा, चाहे अभी आए इन रिएक्शन टू दिस जो जजमेंट आई है, या आने वाले दिनों में इन द रन अप टू द इलेक्शंस, उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी होगी इंटरनेशनली, इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में। मेरा नाम अनवर अब्बास है, मैं बोल रही हूँ। सिर्फ मुझे आपसे ये जानना है कि इस तरह के नतीजे में मकबूजा कश्मीर में जो आवाम है उनमें एक मायूसी का एलिमेंट बढ़ा है। क्या आप समझते हैं कि जब वो कोई रास्ता उनको नहीं मिलेगा तो वो दोबारा मिलिटेंसी की तरफ जा सकते हैं? शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक तो ये है कि कश्मीरी ने इंडियन रूल को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ये तमाम इंडियन ऑब्जर्वर्स भी यही कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद तो तकरीबन 100% ही रिजेक्शन है इंडियन रूल की मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो वो अपना एक ये, और फिर ये होता है कि जिस तरीके से गाजा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों का जो रिएक्शन आया है, तो अल्टीमेटली इसी किस्म का रिएक्शन ही आएगा कश्मीरियों की तरफ से भी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हिंदुस्तान की हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप अगर उनकी जो जायज़ हकूक़ है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को, उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो खामखा एक जो लावा उबल रहा है तो वो किसी न किसी सूरत में तो जाहिर होगा ही। 5 अगस्त के बाद जो सब पाकिस्तान भी कहा था कि भारत से किसी किस्म के भी मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, ये कौन सा फैसला जो है
अभी यही सूरत है कि इसमें कोई नजरसानी या प्रपोजल नहीं, अभी तक तो वही अपना जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी हमने 5 अगस्त 2019 के बाद उसी पे ही अमल पैरा है। सर, इस मामले में आलमी अदालत इंसाफ की जो यूरिसडिक्शन है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है कि मामला अदालती मास पे तो जा चुका है लेकिन आलमी सतह पर ये अदालती मास पे ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि वो अगर ये इतना सॉलिड केस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान किसी भी अगर अदालत में जाए जो कि एक न्यूट्रल हो अदालत हो तो उसके अंदर इंडिया का केस बहुत ही कमज़ोर है कश्मीर के ऊपर। लेकिन इंडिया हमेशा आड़ लेता है प्रोसीजरल इश्यूज के ऊपर और वो जुरिस्डिक्शन को अपना वो चैलेंज करता है। तो इसलिए वो जो आप कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हैं तो हमें सिर्फ उस सूरत में ही वो उसको सोचना पड़ेगा अगर तो हिंदुस्तान एक्सेप्ट करता है उनकी जुरिस्डिक्शन। अगर वो नहीं करता उनकी तो फिर वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी ही होगी मेरे ख्याल के मुताबिक। जी, थैंक यू। Ali Hussain from the supporter. Sir, historically हमने वेस्टर्न वर्ल्ड का जो डबल स्टैंडर्ड है कश्मीर के मामले में हमने देखा है, जैसे यूएस हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वेस्टर्न, तो एक ऐसी सूरत हाल में कि उसी वेस्टर्न वर्ल्ड का डबल गजा में पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है इजरायली फोर्सेस। तो ऐसे वक्त में यूनानी साहब ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होगी कि जो दुनिया जो है जो ऑलरेडी इतना पॉलिटिकली डिवाइडेड है, तो ऐसे वक्त में कश्मीर के लिए कैसे आप दुनिया को जो है सपोर्ट जो है करा सकेंगे? थैंक यू। जी, आपने सही फरमाया, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इस जो डबल स्टैंडर्ड्स के बावजूद एक जो सोच, एक नई सोच उभर रही है तमाम दुनिया में, सिर्फ खाली इस्लामिक दुनिया में नहीं बल्कि वेस्टर्न में भी, कैपिटल्स में भी ये सोच को, इस बात को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशंस के बगैर इस मसले का हल नहीं हो सकता और ये कि अगर उसका हल जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि उस वायलेंस को रोका जा सके तो वो बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि सिमिलरली कश्मीर के ऊपर भी ये डिस्पाइट ये जो सी है डिविजन्स होती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो ये वाली चीज़ कि ये रियलाइजेशन कि कश्मीर के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने उनको प्रॉमिस किया था इन द शेप ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज कमिटमेंट, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज 2 ममालिक जो कि जिनके दरमियान एक कोर इशू है कश्मीर, तो उसके दरमियान एक जो सीरियस जो एक पीस की जो एफर्ट्स है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और पीस मेरे अपने ख्याल के मुताबिक एक ना सिर्फ इस खित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है because of the various factors, important factors that we they are aware of. सर 75 साल से चाहे वो यूएन है या ओआईसी है, ये तो दोनों मुसलमानों के जो इश्यूज हैं फलस्तीन और कश्मीर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरह काम कर रही हैं ये दोनों मसले हल करने में। अब भारत जो है वो 5 अगस्त के बाद और अब वहाँ पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को हमेशा जो अपनी एक बात करता है, अब दोनों पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दाम किए जाएंगे ताकि भारत को इसी जगह पे रोक दिया जाए? जी बिल्कुल, अपना हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो से है वो उनकी कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। और मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ की बार बार जो एक है उसको रीइटरेट करने की भी बहुत ज़रूरत है, और ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि कश्मीरियों को भी एहसास है कि पाकिस्तान बिल्कुल सॉलिडली कश्मीरी मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, और जब तक ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान उनको अपनी कोशिशें वो जारी रखेगा। बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं OIC का मुतहदा उसकी जानिब से भी कारकर्दगी सामने नहीं और हमारे सामने 2019 से अब तक स्पेशल स्टेटस के फर्म किया गया। हमारी बतौर स्टेट क्या कमजोरियां हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को हाई नहीं कर सके। दूसरी ये कि क्या इसमें कोई हकीकत है जो बात हमको रिपोर्ट हो रही कश्मीर में जो चेंजेस आ रही बिहाइंड द डोर पे मुज़ाकरात कम्युनिकेशन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस वक्त चल रही है। एक तो ये है कि मैं सच्ची बात यह है कि इस बात पे को एग्री नहीं करूंगा कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्राइज नहीं किया। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया में 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी कश्मीर के ऊपर कवरेज हुई है वो गालिबन पहले शायद ही हुई होगी। और जितना भी अगर आप इंटरनेशनल प्रेस में बड़ा उसको रेगुलरली ना सिर्फ मॉनिटर करता हूं बल्कि मैं कश्मीर रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको कोलेट भी करता हूं। जब मैं कंपेयर करता हूं तो वो काफ़ी बेहतर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की रिफ्लेक्शन वो रेगुलरली आती रह गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका था विद रिगार्ड टू अब्दुल्ला साहब बैकडोर जी कोई डायलॉग जो से है तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं चल रहा जी। मेरी नजरों से कोई ओझल नहीं है जी, मैं आपको बता सकता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आर्टिकल 370 का मामला है इसके ऊपर चाइना की भी रिजर्वेशंस हैं लद्दाख को लेकर, तो पाकिस्तान क्या चाइना के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई स्ट्रेटजी बना सकता है? क्या आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस मामले के हवाले से? सेकेंडली आर्टिकल 370 के पीछे इंटेंशन जो है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, वो ये है कि वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीली लाई जाए। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो राह ज्यादा हमवार हो जाएगी मोदी सरकार के लिए? एक तो नंबर 1 मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि चाइना को भी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, पर्टिकुलरली ऑन द डिवीजन ऑफ द ये अपना स्टेट, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। और लेकिन ये है कि एज फार एज कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तान पोजीशन, तो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने एक लायामल वो अख्तियार करता है और उसके लिए आपको किसी और मुल्क के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती। पहले तो मादक थोड़ा काफी हो गई मुझे आने में। एफबीआई के डायरेक्टर इंडिया में है, वो जो अमेरिका में करने की साजिश की थी भारत ने, एक दूसरा कमेंट करने से दूसरा ही निकला है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा तो कश्मीर है, उसी तनाज़े की बुनियाद पर इंडिया को जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन हमें जब भी मौके मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी कोई ओरिजिनल स्टाइल जो है जो डिप्लोमेसी में होता है नॉर्मली बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बड़ा दिखावटी से दिखाई देती है। हम ऐसे मौकों से एग्रेसिव डिप्लोमेसी के लिए क्यों नहीं फायदा उठाते? कम से कम आप मेरे से तो एक्सपेक्ट ना कीजिए कि मैं वो अपना लथार्जिक डिप्लोमेसी मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। आपको मालूम है, मैं याद दिलाता रहूं कि मैं 2003 में जिस हालात में वापस आया था वो भी आप सबको याद होगा, वो अपना आपको याद होगा। और उसके बाद मेरी तो ख़ास तौर पे एक बहुत ही कश्मीरियों के साथ एक वाबस्तगी भी है
और कश्मीर कॉज के साथ भी वाबस्तगी है, तो वो उस सिलसिले में आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं। आपने FBI डायरेक्टर की बात की, उनके विजिट की, तो आपके आने से पहले मैंने उसी इशू के ऊपर एक जवाब दिया था मतीन हैदर साहब के सवाल के जवाब में कि कोई भी नैरेटिव हो, किसी भी मुल्क की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी होगी तो ओनली देन आपका जो नैरेटिव जो आप बनाते हैं वही एक्सेप्टेबल होगा। इस वक्त जो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल के ऊपर है, बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन अटेम्प्ट्स दैट जो उन्होंने कोशिशें की है, असैसिनेशन की है, और उसके बारे में एक बड़ा एक गम और गुस्सा पाया जाता है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। तो उसमें इस हालात में उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं उनकी नैरेटिव की रही। तो ये एस्पेक्ट भी जो सहरा ज़हन में रखने की जरूरत है। जी जाहिर साहब। एक तरफ हम देखते हैं समझौता एक्सप्रेस का फैसला हो, बाबरी मस्जिद का हो, अजमेर के साथ का हो, या इस तरह के आज फैसले आए हैं, एक लंबी तारीख है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है वो बेबस नजर आते हैं गजा के ऊपर। उनके स्टेटमेंट सबके सामने हमारे पास फिर क्या बचता है? जो कनाडा ने कहा अमेरिका के इंडिया के बारे में, अमेरिका ने कहा, यूके ने कहा, तो क्या हम इन तमाम चीजों में उनके फैसले और ये चीजें जो अब आई हैं सामने, इनका भी कोई डोजियर बनाकर दुनिया को बता सकते हैं कि ये असल हकीकत है इंडिया की? देखिए जी, बात ये है कि ये जो कनाडा में हुआ या यूके में हुआ या अमेरिका के अंदर हुआ, ये तो मैं समझता हूँ कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत ही राज अफशा होंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स या और असैसिनेशन जो उनमें हिंदुस्तान मुलव्वस रहा है, ये सिर्फ इन 3 ममालिक तक कन्फाइन नहीं रही थी, इसका दायरा कार बहुत ममालिक में है। और आप बहुत जल्द सुनेंगे कई और ममालिक भी जो से हैं वो दे विल आल्सो कम फॉरवर्ड विद सिमिलर इंफॉर्मेशन about India's role in various killings which have taken place in their respective countries. जय साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने कहा कि ये नहीं कहूँ कि पाकिस्तान की सफारती नाकामी है, मगर क्या अक़वामी बिरादरी की भी नाकामी नहीं है? क्योंकि UNSC को देखें, UN यूरोपियन पार्लियामेंट, OIC, हर जगह पर पाकिस्तान ने आवाज उठाई और इंडिया ने उसकी नहीं मानी। इन 300 बिल्कुल खातर में नहीं लाया पाकिस्तान। इसका ये मतलब अब हमारे पास क्या बचेगा? इसके अलावा जो वीटो की है गजा के ऊपर जो रेजोल्यूशन थी, अमेरिका ने अटेंड नहीं किया, तो इतने ममालिक मिल के भी जो UNSC को बोरी का करारदाद मंजूर नहीं करवा सकते। इस वक्त हमारे पास क्या बचा? क्योंकि मजीद आने वाले दिनों में लगता है ऐसे ही है कि कशीदगी बढ़ेगी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आ रही है वो भी लगता यही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 4-5 साल में मजीद तीसरी मरतबा मोदी गवर्नमेंट आ रही है, तो हालात तो मजीद बिगड़ेंगे दोनों ममालिक। मैं आपको बताऊं जी कि ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान ने तो इस पूरे अरसे में पिछले 75 साल में कई दफ़ा कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो एजेंडा है, इस एजेंडा आइटम को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि 1948 में बना था, उसको भी ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसमें कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि जो उनका जो नैरेटिव था कश्मीर के बारे में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो ममालिक जिस किस्म की पोजीशन लें, बिकॉज आजकल कुछ और पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको एक या खामोश रहना पड़ता है या आपको। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर जिस तरीके से कश्मीरी वो एक डिटरमेंट है अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे।
बिल्कुल उस तरीके से ज़रूर अब उनको वो उनका मकासद हल होंगे जिस तरीके से मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि फ़लस्तीनी अवाम को भी उनको यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक उनको ज़रूर उनका हक मिलेगा। तो मुझे तो अब ये मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों ने जिस तरह की स्ट्रगल दिखाई है 1947 से लेके, ये बल्कि उससे पहले की भी 75 साल गुजर चुके हैं, हिंदुस्तान भी तो उनकी स्ट्रगल को सप्रेस नहीं कर सका। बल्कि अगर आप आज भी कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में आगे जाके हालात को देखें तो आपको एक वहाँ पर एक प्रिजन वाला जो है एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पर। अगर तो हिंदुस्तान इतना कामयाब होता या जिस किस्म का उसका नैरेटिव बन रहा है तो वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि वहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुस्तान ने उसको बिल्कुल एक प्रिजन के तौर पे बना के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ जो वहाँ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो वहाँ पे जा बाज़ औक़ात चली जाती है, जो डेली बेस्ड जो उनसे डिप्लोमेट्स हैं, तो वो भी अपने अपने ममालिक को एक रिपोर्ट भेजते हैं कश्मीर की सिचुएशन के बारे में, और उसके बारे में उनकी जो होती है असेसमेंट वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं होती हिंदुस्तान की जो एफर्ट्स के बारे में। This concludes our briefing. Thank you very much for all of you for coming and for the Foreign Minister to share his comments. वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी